Polymers are very large molecule which are made up of many repeating small molecular units, which are made up of many repeating small molecular units. These repeating small molecular units are called monomers. These repeating small units are called monomers. These repeating small units are called monomers. Which polymerizes to give a polymer. 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 Now, based on monomers, polymers are classified into two categories. एक को कहते हैं हम लोग होमोपॉलीमर्स और दूसरे को बोला जाता है कोपॉलीमर्स. What are homopolymer? Which has only one type of monomer. जो एक ही टाइप का मोनोमर से पॉलीमर बना है उसे हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर. जैसे मान लो तुमसे बोले फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्डेड CH2 इथिलीन जब पॉलीमराइज करता है, कैसे करता है ये भी बताएंगे. जब पॉलीमराइज करता है तो ये बन जाता है CH2 का बहुत होल N. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीइथिलीन. तो ये पॉलीइथिलीन जो है वो पॉलीमर है, लेकिन ये एक ही तरह का मोनोमर से बना हुआ पॉलीमर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर. कोपॉलीमर which has two or more different monomers, they are called copolymers. जैसे हम लोग पढ़ेंगे बूना N, बूना S, दो अलग अलग मोनोमर आपस में मिलते चले जाते, ज्वाइन करते चले जाते और बहुत ही लंबा चैन बन जाएगा. दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स. नाउ based on synthesis, the polymers are classified into two types. Based on synthesis, polymers are classified into two types. पहले को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. उसमें लिख लो दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ थर्ड मॉलिक्यूल. They are formed by condensation reaction by elimination of a third molecule. They are formed by condensation reaction by elimination of a third molecule. The monomer must have two different or two similar functional group. दो functional group का होना जरूरी है. The monomer should have two similar or two different, must have two similar or two different functional group present. Then only condensation polymer gets formed. Monomer having only two functional group always gives linear polymer. Molecules with only two functional group gives linear polymer.
molecules with two functional groups only two functional group gives linear polymer. More than two functional group can give branched as well as more than two functional group can give a branched polymer. More than two functional group can give us branched polymer or cross-linked polymer. Or cross-linked polymer. Or cross-linked polymer. सेकंड कैटेगरी एडिशन पॉलीमर. पहले को बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर, दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शंस. Those polymer which are formed by addition reactions. Those polymer which are formed by addition reactions. Those polymer which are formed by addition reactions are called addition polymer. Are called addition polymer. जैसे for example, मान ले एक फ्री रेडिकल जो हम इनिशिएट किए, एक फ्री रेडिकल हमने इनिशिएट किया. जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, रेडिकल जनरेटर्स. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हीट कर दो, OH डॉट मिल जाता है. Cl2 का HNO दे दो, Cl डॉट मिल जाता है. हम मान लो कि एक रेडिकल इनिशिएट कर दिए और ये रेडिकल आया कांटेक्ट में किसका? इथिलीन का. ये इथिलीन के साथ जुड़ जाएगा. जुड़ने के बाद ये बन जाएगा INCH2CH2 डॉट. अब ये CH2 डॉट फिर दूसरा इथिलीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा. INCH2CH2CH2CH2 डॉट. चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चलते चलते इट विल बिकम IN बॉन्डेड टू CH2 होल N. नथिंग इज गेटिंग एलिमिनेटेड हियर. पेप्टाइड कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है हर पेप्टाइड लिंकेज बनने पे. लेकिन यहां पर कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. इसलिए ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलेंगे एडिशन पॉलीमर. समझ में आ रहा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, polymers are classified into three categories. Linear polymer, linear polymer, obviously नाम से ही समझ में आ रहा. That polymer which is linear in shape, that polymer which is linear in shape, that polymer which is linear in shape and various linear polymeric chains and various linear polymeric chains are stacked over one another. Various polymeric linear chain या various linear polymeric chain are stacked over one another. एक के ऊपर एक रखा हुआ जैसे, are stacked over one another to give a very closed packing. To give a very closed packing are called linear polymers. Are called linear polymer. Linear polymer का शेप linear होता है. और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पॉलीमेरिक चेन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रेगुलर तरीका से जमाए हुए होते हैं. और इस रेगुलर तरीका से स्टैकिंग के वजह से ये बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है. क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के कारण दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, they have very high tensile strength, they have very high density, they have a very high tensile strength, they have a very high melting point, they have a very high melting point, they can be converted into fibers, they can be converted into fibers.
दूसरा कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा, ब्रांच्ड पॉलीमर कैसे होगा, उसमें ब्रांचिंग लगे होंगे और ये ब्रांचिंग के कारण एक दूसरे से इतना क्लोज्ड पैकिंग नहीं कर पाते। ड्यू टू ब्रांचिंग क्लोज्ड पैकिंग does not happen, or closed packing does not happen implies they have less tensile strength, they have less tensile strength, they have less melting point, they have lesser density. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे। गरम करने से हार्ड हो जा रहा, थर्मोसेटिंग, गरम करने से मुलायम हो जा रहा, थर्मोप्लास्टिक। व्हाट आर फाइबर्स, समझ आ रहा? व्हाट इज बेकेलाइट? डू यू नो व्हाट इज बेकेलाइट? बेकेलाइट स्विच को बनाने में काम आता है। अबे घर का आजकल क्रॉकरी सब मेलामिन बेकेलाइट, मेलामिन का ही है, मेलामिन बेकेलाइट भी होता है एक। बहुत सारे पॉलीमर जिसका अलग अलग यूज है। खैर ब्रांच हो गया, लास्ट वाला लिखो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ड्यू टू ब्रांचिंग क्लोज्ड पैकिंग इज नॉट फाउंड, नॉट हैपन। क्लोज्ड पैकिंग नहीं होता, इसलिए इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होता है, लो डेंसिटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर ब्रांच्ड पॉलीमर। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऐसे समझना, बिल्कुल लीनियर वाला फाइबर, लीनियर वाला पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के ऊपर स्टैक और इनमें भी कनेक्शन इस तरीके से जुड़े रहते। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जनरली जो सिंथेटिक पेंट्स होता है, जो घर के बाहर जो लगाया जाता है, जो बारिश से बचाता है, बोलते हैं ना उसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दैट डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टू एंटर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा। लीनियर पॉलीमर दे आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू branching, बात समझ में आ रहा? They are connected through branching. Such kind of structure will be called as cross-linked. Cross-linked are also very hard. They are brittle, high melting point. तो तीन तरीके से पॉलीमराइजेशन चलेगा, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर। स्टार्च के बारे में हम बताए थे ना पिछले क्लास में, क्रॉस लिंक्ड रहता है। कार्बन 1 कार्बन 4 वाला जुड़ते जुड़ते लीनियर बनता है, और जो एक CH2 छूट जाता है वो CH2 कार्बन 1 कार्बन 6 के बीच में लिंकिंग कर देता है। दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।